میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا. ہیلو فرینڈز, ست شری اکال, آداب, نمستے, ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن, جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں مفتی صاحب کی دوسری شادی کیسے ہوئی, دلچسپ واقعہ مفتی طارق مسعود جی. تو اس ویڈیو کے لیے ہمیں بہت ٹائم سے ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے, اور صحیح میں یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, کیونکہ اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ مفتی صاحب کی دوسری شادی ہو رکھی ہے اور کیسے ہوئی, اس کا پورا کیا واقعہ ہے. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. واقعی میں ابھی تک ہم نے طارق مسعود جی کے بہت سارے بیان پہ ریاکشن ویڈیو بنائی ہے, اور آپ سب اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ہمیں بھی پرسنلی ان کے بیان بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ جاننا واقعی میں بہت دلچسپ ہوگا کہ ان کی دوسری شادی کیسے ہوئی, یا ان کا دوسری شادی کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو چلیے پتہ کرتے ہیں کہ کیا کیا خاص ہونے والا ہے اس ویڈیو میں. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات. دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو, تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی. فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھئی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے. ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہے گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے. تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے. پوچھ جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی, پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے. میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے. بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ. بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی. میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہہ رہے ہیں پھر آپ کا دماغ خراب ہے, میں بھی یہی سوچ جب رہی پہلی ہوں میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈ ایک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں
कोई कंवारी लड़की नहीं मिलेगी, सही है ना। दूसरी का सुनते ही लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मुझे कोई ऐसी खातून ही मिल सकती है कि जिसकी जरूरत हो, जिसको रिश्ते कंवारे लड़कों के ना मिल रहे हो। तो मैंने सुना था आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चों के साथ आजकल कौन किसी को एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका ख्याल ये है कि आपकी बच्ची के लिए मैं बेहतर हूं दूसरी पे, तो आप करें। अगर आपको कोई कंवारा मिल रहा है तो कतन ना करें आप मुझसे। मैं भी आपकी जगह होता तो कंवारे को तरजीह देता सेकंड मैरिज वाले पर। भाई बाप तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। मैंने उनसे कहा अगर आपको अपनी बच्ची के लिए इस उम्र में, मेरी उम्र उस वक्त होगी मेरा ख्याल है 15 साल पहले, कितने साल का मुझे होना चाहिए, यंग था मैं, इससे तो बहुत अच्छा था जो आज हो ना, मैं इससे तो बहुत ही हटो बच्चों किस्म का था। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई कंवारा लड़का अपनी बेटी के लिए मिलता है कि जिसके साथ कोई दूसरी बीवी मौजूद ना हो, तो मैं खुदा की कसम आपकी जगह होता तो मैं भी उसको तरजीह देता। अच्छे से अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरी जितनी अर्निंग है, अगर आपको इससे डबल अर्निंग वाला कोई दूसरी शादी के लिए मिले तो आप उसको दें, क्योंकि आपकी बच्ची वहां जाके इतना अच्छा खाएगी कि मेरे यहां इतना अच्छा नहीं, मेरे यहां इतना खाएगी, वहां जाके इससे डबल अच्छा खाएगी। तो उन्होंने कहा मिल ही तो नहीं रहा ना, 2 साल हो गए। जो भी तलाक का सुनता है, बच्चों का सुनता है, निकाह का पैगाम नहीं भेजता। जो भेजते हैं वो बुड्ढे बुड्ढे लोग भेज रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे 55 साल 60 साल इस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे कर सकते हैं। सही बात है। ये तो जाहिर है बुढ़ापा अभी तो एक जवान लड़की के लिए एक ऐब की बात है ना। तो मुझे कहने लगे कि यार नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहने 6 महीने का हमें सोचने के लिए टाइम दें आप। मैंने कहा मैं 6 महीने क्या, आप सोचने के लिए 10 साल का टाइम ले लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अगर इस दौरान कोई रिश्ता मिल गया इससे अच्छा तो मैं वहां हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। मैं देखो ये इतनी तफसील से वाकया इस फलसफे को समझाने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि 4 शादियों का फलसफा है क्या। मैंने कहा मुझे अगर इस दौरान कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं फौरन वहां हाँ कर दूंगा, फिर तीसरी पे आपको पैगाम भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां कर दूंगा। मैं 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिश्ते मिलते बहुत मुश्किल से हैं। उस वक्त तो मैं ज्यादा मशहूर भी नहीं था ना। मैंने कहा धक्के दे दे के लोग निकाल देते। मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का दूसरी शादी के लिए, लंगड़ी। उनके अब्बा ने डांट के भगाया है मुझे। लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्नो जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा जो बेसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी पे तो ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो पागल हैं, आप ना करो, आप कमारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए। लकवा की, मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों, मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐप बर्दाश्त कर लो, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, एक टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब 4 शादियों पे बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया। तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हाँ मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा। बहरी, समझा, गूंगी बहरी। जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा देखे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहाँ, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी। पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही, वो भी गूंगा बहरा, ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं। लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी और डांट के भगाया उन्होंने मुझे। क्या आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसे भगाया। मैंने कहा हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा, आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजा। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कंवारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकती। मैंने
कहा बैठे रहो, एंजॉय, अब तक एंजॉय इन्ना लिल्ला हो चुका होगा मेरा ख्याल है, अब तक एंजॉय करो लाइफ। भैया वो ठीक है, नहीं करें, उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी मर्जी है, उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको। ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, तो जो हमारे ससुर थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है यार, ये तो यूं, ये तो यूं। मैंने कहा भाई आप 6 महीने सोचें, आप 1 साल सोचें, अगर इस दौरान मुझे आपसे बेहतर मिल गया तो मैं वहां चला जाऊंगा, आपको मुझसे बेहतर मिल गया तो आप उधर चले जाना। मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप, बाउंड तो करना ही नहीं चाहिए भाई, आजाद हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। 6 महीने गुजर गए, ना मुझे मिला ना उन्हें मिला। हम भी जहाँ जाते, और हम कहाँ कहाँ गए हैं। बाज लोग ऐसे बैठे होते हैं, मुझे कह रहे थे रिश्ता ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ यहाँ बैठ के तुम्हें तो नहीं मिलेगा रिश्ता, हमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर फ़ोन करके मुझे दोबारा बुलाया। अच्छा, मेरी ये खाला मेरा साथ दे रही थी, ख़ानदान में कोई भी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं देता। वो खाला भी इसलिए दे रही थी, वो बेवा थी और किसी की दूसरी बीवी बनी थी वो, वरना वो भी कहाँ देती। तो उनको ले गया मैं। जब हम वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं, तो मेरे सास ससुर अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, मेरे सामने आके बैठे और कहने लगे, मेरी खाला भी थी, उन्होंने कहा भाई बात सब तय हो गए कि भाई चलो। अब देखो, उन्होंने ना मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी, ना मसलक देखा। उनको पता था भाई बेटी की ज़रूरत है, बच्ची को कब तक घर बिठाएं, और जैसे जैसे उम्र ज़ाया होगी इस किस्म के रिश्ते भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मसलक को मत देखो, सही है ना। बच्ची को घर मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, मियाँ मिल रहा है, और बच्चे भी रख रहा है याद में, बस और क्या चाहिए। तो उनके सामने मुझे तकरीरें नहीं करनी पड़ी है 4 शादियों के फजाइल पर। उनकी नीड थी, उनकी जरूरत थी, उनकी समझ में आ गया। 6 महीने बिठा के भी देख लिया, मजीद 2 साल पहले 6 महीने और। उन्होंने कहा भाई रिश्ते आए इस दौरान, सब आड़े तिरछे आते हैं, आड़े तिरछे। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है। फिर मेरी खाला ने उनसे ये बात कह दी कि ये मजीद शादी नहीं करेगा, मुझसे पूछे बगैर कह दी। वो भी भर गए, अबे ये क्या, चलो हम दूसरी पे दे रहे हैं, अभी फिर मजीद भी करेगा ये। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे नहीं बताया। हम आ गए घर, मेरी खाला ने कहा कि मैंने उनको तसल्ली दे दी है कि वो तीसरी शादी नहीं करेगा, ये मैंने तसल्ली दे दी। मैंने कहा आपने किससे पूछ के तसल्ली दी उनको? यानी मुझे पता है तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, तू शादियों में शादी करता है, और कोई काम नहीं है तेरे दुनिया में। मैंने कहा मैं करूं ना करूं वो मेरा हेडेक है, लेकिन ये क्यों जबान दे दी जाके, वो कोई पूछ थोड़ी रहे थे हमसे। अब मैंने कहा मामला हो गया खराब, अब अगर मैं करूंगा तो जबान क्या हो जाएगी, खराब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ससुर को फोन किया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये निकाह से पहले एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले उनका फोन आया कि हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मीटिंग हुई, मैं उनके घर चला गया, उसी तरह आके बैठा, सास ससुर मेरे आके बैठे सामने। मैंने कहा पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले मैंने कहा पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे निकाह नामे पे लिखवाएंगे कि आप मजीद शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं जिस जरूरी बात के लिए आया था वो ये था कि मैं अभी से लिख के दे रहा हूं कि मैं तीसरी लाजमी करूंगा। सी की तैसी। मैंने कहा मैं करूंगा। अब वो गुस्से में आ गए ना, क्या आपका दिमाग खराब है, आप तीसरी शादी भी करोगे, पागल हो गए हो। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी पहली बीवी फिट ठीक ठाक माशाल्लाह, फिटफाट, कोई बीमारी नहीं उसको, मेरे उससे बेटा भी है, बेटियां भी है, सब औलाद हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है, मेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मैंने कहा मैं अगर कर रहा हूं अपने फायदे के लिए तो आप भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो कल किसी तीसरी औरत को अगर जरूरत पड़ती है उसके फायदे के लिए मैं करूं तो मैं वहां भी करूंगा। हाँ, मुझे रिश्ता ही कोई ना दे के पहले एक जब होती है तो रिश्ता मिलना मुश्किल, 2 हो जाए तो और ज्यादा मुश्किल, ना दे तो वो उनकी मर्जी है, हो सकता है सारी जिंदगी ऐसी बैठ रहा हूं। लेकिन जहां आपकी बेटी को जरूरत पड़ सकती है कि वो किसी मर्द की दूसरी बीवी बन रही है, क्योंकि इकलौते का ऑप्शन, अच्छे इकलौते का ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ऐसे ही किसी खातून को फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अच्छे इकलौते का ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे वाले का भी अच्छा उसको नहीं मिल रहा, तीसरा वाला उसके ख्याल में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, लेकिन उसका ख्याल होगा कि ये हमारे लिए तीसरी पे भी क्या है, बहुत अच्छा, तो ये अव्वल हो सकता, फिर उसको इनकार करना ये उसके साथ जुल्म है। अब देखो कितने बड़ा मैंने बम सर मारा कि नहीं मारा, वो टेंशन में आ गए।
यार ये क्या मसला है। मैंने कहा सोचने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, अभी निकाह हुआ थोड़ी है, आपको भी हक है ना इनकार कर दें। मैंने कहा इनकार कर दें आप, कोई मसला नहीं, आपको इससे बेहतर कोई मिलता है तो आप वहां करें। उन्होंने कहा नहीं मिल रहा ना, मसला तो यही है, मिल रहे हैं बुड्ढे बुड्ढे लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इससे हम जॉब करवाएंगे, जवान आ रहा है तो कह रहा है ये जॉब करेगी, और अगर बुड्ढा आ रहा है जो पैसे हैं तो लेकिन बुड्ढा है, वो पैसा है लेकिन बंदा क्या है, उम्र में बहुत ज्यादा है। तो फिर वो सोच में पड़ गए। तो फिर वो मेरे सामने मेरी सास से कहते हैं कि इतनी बात है कि बंदा 2 नंबर नहीं है। ये लफ्ज उनको मुझे याद है कि जो इसके दिल में है वो उसकी जबान पर। और फिर वो कहने लगे कि 1 नंबर आदमी का मिलना बहरहाल मुश्किल है, ये बंदा में कोई घुमा नहीं रहा बात को, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए, वो कर रहे थे ना इसलिए मैं पार्सल कर रहा हूं। उन्होंने कहा इतनी बात जरूर है कि बंदे में घुमा नहीं रहा बात को, कि घुमा रहा है, यूं कर रहा है, इधर नहीं, एक्चुअली देखेंगे। वो सीधा सीधा कह रहा है भाई जब दूसरी है तो इस्लाम में तीसरी भी जायज है। तो मैंने कहा हो सकता है ना भी करूं मैं, रिश्ता ही ना मिले या मेरा इरादा बदल जाए, लेकिन मैं गारंटी दूं कि नहीं करूंगा ऐसा नहीं होता, तो करूंगा मैं। अभी आपके लिए यही है कि करूंगा। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं मेरे, बेटे हैं, उनसे अल्लाह का शुक्र है अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह आइंदा भी गुजारे। घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, फिर हमने एक और भी घर लिया। तो मैं एक मजलिस में एक आलिम के पास बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या 4-4 शादियां। मैंने कहा देखें, जिसको ज़रूरत होगी ना उसकी समझ में 4 शादियां आएंगी, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको किताबें भी समझाते रहो, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहो, उसकी खोपड़ी में बात नहीं बैठे। तो जिस लड़की को ज़रूरत होगी वो आपकी दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। जिसको ज़रूरत नहीं है या जिसकी शादी हो चुकी है वो, या जिनको शादी का जज्बा ही ख़त्म हो गया, उनको आप घंटों घंटों तकरीरें करते रहो, वो मेरे ऊपर यही एतराज़ करेंगे इस मुफ्ती को शादी के अलावा और कोई बात नहीं आती, वो ये करेंगे। तो उनको तो ना इससे कोई गरज कि भाई बंदा देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, उनको ना इससे गरज इसने 4 शादियों पे किताब लिखी है कि नहीं लिखी, उनको इससे भी गरज नहीं। उनको पता था भाई हमारी बच्ची को अलग घर लेके दे रहा है, खर्चा उठा रहा है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, इस ऑप्शन को मिस मत करो। तो जिसको जरूरत होगी उसकी समझ में आएंगी, 4 शादियां भी आएंगी, 2 शादियां भी आएंगी, 3 शादियां भी आएंगी। क्या बात है यार, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। मतलब जिसने भी रिकमेंड करी, सच में आपने देखा होगा हम दोनों बिल्कुल ध्यान से बैठ के उनका पूरा वाक्य सुन रहे थे, क्योंकि क्या कहते हैं वो सच में इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बताए थे। कुछ उनका बताने का तरीका ही इतना अच्छा है कि आप एकदम ध्यान से सुनते हो उनकी बात को। और ऊपर से सबसे सही चीज मुझे उनकी ये लगी कि वो सब सच बोल रहे हैं। मतलब वरना अपनी बात बंदा छुपा भी सकता है या उसको किसी और तरीके से भी बता सकता है, उसमें 2 बातें लगा भी सकता है, बट उनका थोड़ा सा जो बताने का तरीका है या उनका जो थोड़ा नेचर है वो सच बोलने का है, जो कि हमने पूरी वीडियो में भी देखा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की। वाकई में इस वीडियो के अंदर मुझे जिस बेबाकी के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुफ्ती साहब जी ने अपनी सारी जो है लाइफ की हिस्ट्री, जो लाइफ का जो उनका आई थिंक जो उनका मेन जो सोचने का तरीका है वो उन्होंने बहुत बाखूबी से सामने रखा। नहीं तो काफी लोग इस तरीके से डरते हैं कि अगर वो जिंदगी की उनके अंदर जो चल रहा है, अगर वो इस तरह ऑन स्क्रीन और अपने सारी जितने भी उनको सुनने वाली ऑडियंस है उनके सामने बताएंगे तो पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा। पर बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ की सच्चाई रखी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो हमें इतनी ज्यादा दिलचस्प लगी कि हम उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, हम सिर्फ सुन रहे थे कि कितनी हिम्मत इन्होंने दिखाई है कि ऑन स्क्रीन इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई रख देना। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।